Okay guys, so in this session I'm going to cover like यूजर डिफाइंड क्लासेस हम अपनी बनाएंगे क्लासेस को उनको मैप में सेव करेंगे स्टोर करेंगे। साथ में हम ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्री मैप का कंसेप्ट भी हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ट्री मैप का कंसेप्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्री मैप का कंसेप्ट छूट गया था क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया था। तो आई वुड ट्राई टू कवर यहाँ पर और साथ में कलेक्शंस क्लास जो मैंने आई थिंक बताया था कि हम जो मैप है जो नॉन सिंक्रोनाइज मैप है उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अनमॉडिफिएबल मैप है उसको मॉडिफिएबल जो मॉडिफिएबल है वो मैप है उसको अनमॉडिफिएबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास के साथ में। एंड so one thing I'm going to cover here like collections utility class methods. Okay, so few operation we will use with collections class. The second thing uh, like tree map concept. Okay, and third thing I will show you how to create the like how we can manage the user defined class object like employee department like that. Okay, we'll see. So let's start first. Let's say this is my map collections. Okay, and all we already discussed that what is the map and what is this generic type. So this you can go through my previous session, not issue. So but I would say here generic type means just detecting incompatible assignment at compilation time. ओके, सो इनकम्पेटिबल असाइनमेंट यहाँ पर हम रन टाइम पर नहीं भेज रहे हैं क्योंकि रन टाइम पर अगर एक्सेप्शन आएगा तो वो बेकार है। इससे अच्छा हम कंपाइलेशन टाइम पर ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं इनकम्पेटिबल असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक टाइप। ठीक है, फाइन। सो टू एलिमेंट गाइस आई हैव एडेड इन द फॉर्म की वैल्यू पेयर। ठीक है, नाउ I want to synchronize this map. This is the map which is not synchronized by default, but I want to synchronize. Okay, so let's see how println. You can use your collections class. Collections. This is the utility class. It is available in the utility package. Dot. See, there are many methods. Empty list you can check. There's the empty list. Okay. Check the collection. Max. Add all. Add LeafOQ. Okay. Binary search. And the entry set method is there. There are a lot of method. Utility method is there. You can see there is a synchronized list. You know that array list is not synchronized by default, so you can make array list as a synchronized with the help of the synchronized list method. Okay, synchronized map, suppose hash map is not synchronized by default, so I can make this map hash map as a synchronized. So you have to pass this map. So now this map is becoming synchronized, remember, you can see. So in this way, and there's the another method you can say collections dot. Now this map you can utilize with multi-threading environment. Means at a time only one thread can utilize. At there, in case of multi-threading environment, there won't be any data issue or data integrity issue. Now you can see unmodifiable map. See, if map is modifiable, you can make it unmodifiable, so nobody can modify that map. Okay. Sorted map, synchronized sorted map. Okay. See, synchronized sorted map, or you can use synchronized sorted set. Synchronized sorted map, let's see. I will use here synchronized sorted map and then I will show you the map synchronized sorted map. So map will be synchronized here based on the key synchronized sorted map, this one. Okay, it's something. What is there? It's returning required type sorted map, it's as map, and
sorted map required, yeah, required type sorted map. ओके, तो यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ट्री मैप ही आएगा गाइस, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो सॉर्टेड मैप है वो उसके लिए रिक्वायर्ड टाइप क्या चाहिए, सॉर्टेड मैप चाहिए, बट हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हैश मैप। तो आप ये कर सकते हो यहाँ पर, ये मैप कर दो यहाँ पर, ये कर सकते हैं आप, आई थिंक, क्योंकि सॉर्टेड मैप इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मैप इंटरफेस। map.put collections, and then uh, yeah, not possible, I think this is the hash map type, yeah, because yeah, not possible guys, yes, provided map string integer but read the sorted map. So not an issue, I will use here. Now we will move to the tree map concept. So collections is a utility class which is available in the utility package, and there are some method, you those methods you can utilize based on your requirement, like uh, जो मॉडिफिएबल कलेक्शन है उसको अनमॉडिफिएबल कलेक्शन कर सकते हो, सिंक्रोनाइज जो लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं है उसको सिंक्रोनाइज बना सकते हो, मैप हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं है उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ आई विल यूज योर ट्री मैप। Tree map is a class which is implementing sorted map. Okay. Now here if you see the key, based on the key, the sorting will be happened based on the key. Let's say my A simple A G K for pattern understanding A। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर रिटर्न करता हूँ मैं, डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि सॉर्टिंग लॉजिक अप्लाई होगा जब की को आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे टी मैप के अंदर। तो ये आप देखोगे यहाँ पर पहले की ए वाले की, ये वाली जो की है, so sorting is happening A G H I J K, okay, in this way guys. So this is guys about the tree map concept. Like my map will be sorted based on the key, okay, based on the key object, remember, this is you have to understand. Now I will take the example for user defined class. So let me introduce, let's say I'm creating one employee class which has private string name, private string employee ID, employee ID लेट्स से मैं पे इंटीजर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर दिस इज माई जस्ट सिंपल क्लास एम्प्लॉय क्लास, एंड आई विल ट्राई टू जनरेट getter setter method। ओके, मैंने getter setter मेथड यहाँ पर जनरेट कर दिया दोनों के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर getter setter, आई थिंक आईडी के लिए नहीं हुआ है, सिलेक्ट करना बस। ओके, तो अब एम्प्लॉय आईडी के लिए हो गया। ठीक है, अब मैं एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को इसमें स्टोर करता हूँ। ये देखो,
तो अभी मैं सपोज मैं बात करूंगा यहाँ पर सिंपल हैश मैप की। हैश मैप, अब यहाँ पर मैं किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहता हूँ, यहाँ पर चाहता हूँ इंटीजर आईडी है, मतलब एम्प्लॉय आईडी हो गई मान लो। तो यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नेम एम्प्लॉय आईडी, ओके। तो यहाँ पर इंटीजर लिख लेता हूँ, यहाँ पर इंटीजर, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय, ठीक है। और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पर है। ओके, ये हैश मैप हो गया, सॉरी, ये लुक हो गया हैश मैप। ठीक है, ये हैश मैप हो गया। ये मैंने मैप डॉट पुट कर दिया इंटीजर 1 2 3 4, और ये जॉन 1 2 3 कंस्ट्रक्टर चाहिए इसमें। ओके, सो नीड टू यूज द कंस्ट्रक्टर, सो लेट मी टू, आई ऑलरेडी गाइस क्रिएटेड व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, तो आप जाके देख सकते हो मेरे वीडियो को। ठीक है, मैंने ये बना दिया, अभी यहाँ से ये हो गया। चलो, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की जगह पे लेट मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मेरी लेट से यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 101 102 103, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं अभी आप डिस्प्ले करूँगा, लेट से विल सी क्या आउटपुट आता है। पहले तो सिंपल मैंने ऐड किया ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर गाइज मैं बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ अभी आपको, लेकिन बेसिक ऑपरेशन में भी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इशू आते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर ये डिस्प्ले हुआ, बट मैं अगर स्ट्रिंग के केस में बात करूँ, जैसे अगर मैं स्ट्रिंग के केस में अभी जो बात कर रहा था, अभी आप देखोगे एक मैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाई, यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का यहाँ पर मैं डालता हूँ, यहाँ पर लेट से जो भी मैंने किया था ना स्ट्रिंग, और यहाँ पर इंटीजर मैप मैप फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग इंटीजर, ठीक है। तो ये मेरा जो था मैप फॉर एम्प्लॉय, ये मैंने just आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस है गाइस हमारे ऑब्जेक्ट के साथ जब आप मैप के साथ डील करोगे, और हमारे खुद के ऑब्जेक्ट के साथ, और जब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उनके साथ तो डील करोगे, तब क्या एप्पल कॉमा कीवी कॉमा 70, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जब मैंने डिस्प्ले किया अपने ऑब्जेक्ट को, और मैं अब अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये मेरी स्ट्रिंग और इंटीजर, तो आपको मालूम है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक है। तो मैं जब इनके ऑब्जेक्ट के साथ डील करता हूँ तो
आउटपुट कुछ अलग आएगा और मेरे साथ आउटपुट कुछ अलग आएगा। जो के हमारे बनाई हुई ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय आप देखोगे, ठीक है। मैप फॉर ऑब्जेक्ट मैंने किया, इसमें डील कुछ और हो रहा है, इसका डील कुछ और हो रहा है, आप देखोगे। लेट्स सी। आपको पता पड़ना चाहिए गाइस यहाँ पर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखो ये जो है ये हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट है। देखो ये 101 तो क्लियर आ गया, कोई इशू नहीं है, ये दिख रहा है। लेकिन अब हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट देखोगे अब ये वैल्यू जो है क्या आ रहा है इसमें, कॉम डॉट कलेक्शन डॉट मैप डॉट एम्प्लॉय, ये वैल्यू ऐसे आ रही है, की सही आ रही है इसमें, लेकिन वैल्यू जो है वो हमारे क्लास की टाइप है, एम्प्लॉय टाइप की, ठीक है। अब ये आप देखोगे इसमें कोई इशू नहीं की वैल्यू बराबर प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इशू इसलिए है कि यहाँ पर जब भी आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो तो वहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है ऑटोमेटिकली। इवन प्री डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी आप डील करोगे ना तो अभी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। अब टू स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर है ही, क्योंकि आप किस टाइप के ऑब्जेक्ट को डील कर रहे हैं यहाँ पर, प्री डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो स्ट्रिंग और इंटीजर इन दोनों क्लास के पास टू स्ट्रिंग मेथड है, इसलिए वो यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले कर पा रहे हैं एप्पल और इसकी वैल्यू आ रही है प्रॉपर। लेकिन अब आप देखोगे ये इंटीजर की तो वैल्यू प्रॉपर आ रही है, 101, 102, 103, इसकी वैल्यू तो प्रॉपर आ रही है। इस ऑब्जेक्ट की कंटेंट तो बराबर डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट के कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड हमारी क्लास के अंदर नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा होगा हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करने के लिए, तो वो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस वैल्यू पर कॉल होगा। रेफरेंस वैल्यू मतलब उस जो रेफरेंस के अंदर वैल्यू है, एड्रेस, उसकी वैल्यू को प्रिंट करने में डिस्प्ले कर रहा है टू स्ट्रिंग मेथड। तो अभी आप देखो कि ये डिस्प्ले हो रहा है, ये रेफरेंस वैल्यू आ गया, देखो आप इस तरह का। इसलिए हमारे कंटेंट नहीं आ रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट के कंटेंट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, टू स्ट्रिंग मेथड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो डिफॉल्ट मेथड तो आ रहा है टू स्ट्रिंग मेथड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। तो डिफॉल्ट मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास से टू स्ट्रिंग मेथड आ रहा है वो डील विद द रेफरेंस वैल्यू ऑलवेज, नॉट द ऑब्जेक्ट कंटेंट। तो रेफरेंस वैल्यू मतलब जो भी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा उस पर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग उस रेफरेंस जो भी एड्रेस है उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट की कंटेंट को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की कंटेंट क्या है, नेम और एम्प्लॉय आईडी। तो आई वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट हियर टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो देखो ये टू स्ट्रिंग मेथड मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया, ये नेम और ये एम्प्लॉय आईडी देखो कर दोगे। अब आप देखो ये आ गया, देखो टू स्ट्रिंग मेथड। अब आपके नेम प्रॉपर आएगा और एम्प्लॉय आईडी प्रॉपर आएगी, ध्यान रखना। तो आप ये ओवरराइड कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है भाई, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हो आप सिंपल नेम जैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हो, आप चाहो तो खुद का भी बना सकते हो। जैसे मैं खुद का बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। मेरे को ये नहीं बनाना है, सपोज मैं चाहता हूँ रिटर्न नेम प्लस प्लस क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ये हो गया। लो तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, इशू नहीं है कोई। देखो आप, तो अभी ये मेरी वैल्यू डिस्प्ले होगी, देखो आप प्रॉपर नेम और आईडी डिस्प्ले होगी, देखो, क्योंकि मैंने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दिया। ये देखो आया जॉन 101, ये आ गया 102 एंड यूवी 103, ठीक है। तो मैंने अपना फॉर्मेट बनाया इसलिए वो आ गया, ये आप देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ, जैसे मतलब जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आ रहा था ये वाला है। इसमें दिख जाएगा कि एम्प्लॉय के अंदर ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी देखो ये वाली फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जैसा आप फॉर्मेट वहाँ डिफाइन करोगे वैसा डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ध्यान रखना, जब आप अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कलेक्शंस में जाते हो तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कंसेप्ट है वो क्या है,
ठीक है। तो अभी देखो आप दिख रहा है आपको एम्प्लॉय में नेम जॉन, एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है इसमें नेम जैन, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। तो चूंकि ये स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में मुझे टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है। स्ट्रिंग क्लास जो है स्ट्रिंग की और इंटीजर वैल्यू, ये प्री डिफाइंड क्लास है, इसमें टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। इन्होंने ओवरराइड करके रखा है, इन्होंने बताया कि भाई जब भी मेरे कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले करना है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। तो हम जब हम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट को आपको कैसे डिस्प्ले करवाना है, इन विच फॉर्म यू वांट टू डिस्प्ले एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग तो डिस्प्ले होगा। अगर आप अपना लॉजिक बताओगे तो वो करेगा, नहीं तो वो डिफॉल्ट लॉजिक जो टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास का है, और वो टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास का जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट वो रेफरेंस वैल्यू को रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, ना कि ऑब्जेक्ट कंटेंट को। आपके ऑब्जेक्ट के कंटेंट को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो दिस इज गाइज रिमेंबर, सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद योर क्लास ऑब्जेक्ट with any collections, with any class of collection like array list, set, unset, tree set, map, s map, tree map। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको टू स्ट्रिंग मेथड अपना डिफाइन करना है। अब चलो मैं दोबारा एक और चीज़ करता हूँ इसमें। ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। अभी मैंने बोला कि आपको की यहाँ पर क्या नहीं होती, कि डुप्लीकेट नहीं होती। ठीक है। तो ये तो मैंने की ये बनाया है, तो अभी तो डुप्लीकेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने की किस किस ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटीजर ऑब्जेक्ट का बनाया है। तो इंटीजर ऑब्जेक्ट में ये डुप्लीकेट नहीं होगी, ये बात सही है। ठीक है। देखो अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि इंटीजर ऑब्जेक्ट ने अपना ये यूनिकनेस मेंटेन करने का एक लॉजिक लगाया होगा। तो देखते हैं, देखो नहीं होगी, होगी ये ओवरराइड हो गई होगी, ये वाली बीओबी वाली 103। अभी एक ना बीओबी की जगह पे यहाँ पे डाल देते हैं अपन एलाइज। ठीक है। ये देखते हैं, लेट्स से मतलब मैं डुप्लीकेसी ट्राइंग टू ऐड, आपको ये बता रहा हूँ। देखो किस लेवल पे अपन को चेक करना होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं कि आपको दिया तो क्या होगा इसमें, कई चीज़ होगी जो 103 में जो लेटेस्ट की होगी वो आ जाएगी, जो एग्जिस्टिंग की होगी वो ओवरराइड हो जाएगी इससे। तो एलाइज वाला आ गया, पुराना वाला ये और रिकॉर्ड ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं अपने क्लास के ऑब्जेक्ट की बनाऊँ। ठीक है। तो अपने क्लास के ऑब्जेक्ट की लेट से मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लेट से। चलो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अपने क्लास के ऑब्जेक्ट का की बनाऊँ। लेट से मैंने यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर बना रहा हूँ क्लास कंपनी। कंपनी क्लास बनाई और इसमें एक सिंपल सा मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी, प्राइवेट स्ट्रिंग कंपनी कंपनी नेम। अब मैंने यहाँ पर कंपनी नेम एक डाल दिया, जो भी अपना एक ले लो यहाँ पर इन्फोसिस। ठीक है। ये डाल दिया और इसके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है। कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया यहाँ पर, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी जब मैंने यहाँ पर किया, ये मान के चलो ये एम्प्लॉय, अब मैं थोड़ा ऐसा करूँगा यहाँ पर, ये रजिस्टर्ड कर रहा हूँ कंपनी के साथ में। ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पर चेंज करूँगा यहाँ पर, जिससे ये मीनिंगफुल हो। जैसे एम्प्लॉय बना दिया मैंने यहाँ पर, ये
ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगा यहाँ पर कॉमा करके कंपनी, न्यू कंपनी, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट। चलो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंपनी में रन टाइम पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लूँ, मैं यहाँ गया, मैं एम्प्लॉय को कंपनी के साथ में यहाँ पर बना रहा हूँ, कंपनी। ये ले लो आप यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा यहाँ करूँगा, ये ले लो यहाँ पर अभी आज। और इसको मैंने, इस एम्प्लॉय को मैंने रजिस्टर कर दिया इन्फोसिस। COMPANY, कंपनी COMPANY, सही तो है। कंपनी कहाँ गया, मैप के अंदर सही तो है भाई। इंपोर्ट क्लास कर दी, हाँ हाँ डी, पब्लिक क्लास कलेक्शन डॉट COMPANY NY। ओके, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस गॉट इट। इंपोर्ट क्लास करो, चलो ठीक है। इन्फोसिस हो गया कंपनी। और नो 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 नो, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, कंपनी COMPANY, दूसरे पैकेज की कंपनी इन्वॉल्व हो गई। तो यहाँ पर ये आई थिंक ये दूसरे COMPANY कंपनी, ये वाला कंपनी चाहिए था, यस। ओके, अब मुझे यहाँ पर जनरिक टाइप में चेंज करूँगा क्योंकि पहला मेरा एम्प्लॉई है, ठीक है, और दूसरा मेरा कंपनी जाने का, मैं बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है मेरे को, ठीक है। ओके, गॉट इट, ये लो मैंने कर दिया। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि विप्रो एसेंचर कुछ एम्प्लॉई, जैसे ये सब कुछ, इस विप्रो को मैं इसमें इन्फोसिस में ही कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एम्प्लॉई है, ये देखो, मैं दिस फर्स्ट एम्प्लॉय बिलोंग टू इन्फोसिस, सेकंड एम्प्लॉय बिलोंग टू द TCS, थर्ड एम्प्लॉय बिलोंग टू द इन्फोसिस, फोर्थ एम्प्लॉय बिलोंग टू द असेंचर, ठीक है। अब मैं 4 एम्प्लॉय में कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अभी लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डील, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है अभी, ठीक है। देखो सारे ऑब्जेक्ट हो गए हैं क्या, देखो नेम यानी ये की हो गया है 102, बॉब एम्प्लॉय 103, जॉन 101, 103, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये सारे ऑब्जेक्ट मेरे हो गए हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट, एक कंपनी में देखो, अभी फिर भी आप देखोगे इसमें वही चीज़ आ रही है, इसकी प्रॉपर ऑब्जेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पर डिस्प्ले, सॉरी, ओवरराइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि भाई आपके ऑब्जेक्ट के कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी अब आ जाएगा, देखो अभी आप दोबारा करोगे तो आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी आर डिस्कसिंग। अब देखो ये कंपनी भी आ गई, देखो TCS, ये सारी चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं की एज ए एम्प्लॉई यहाँ पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और वैल्यू एज ए यहाँ पर कंपनी ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट आई वांट हियर, आई वुड लाइक टू मेक द डुप्लीकेसी हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पर नेम वैल्यू, मतलब इसका नेम हो गया एम्प्लॉय नेम, और ये एम्प्लॉय आईडी हो गई। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं डुप्लीकेसी करना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पर JOHN, और यहाँ पर सेम डुप्लीकेसी, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई देखो सेम ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे
फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे both are same. So we'll see whether this hash map is allowing duplicacy or not as a key. Okay, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं यहाँ अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा तो यहाँ पर अलाउ नहीं हो रहा है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर नहीं होगा, देखो, क्योंकि ये केस तो हम देख चुके हैं स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लासेस के साथ। अब हम यूजर डिफाइंड क्लासेस ऑब्जेक्ट के साथ में ये डील करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विल सी सेम है। देखो आप देखोगे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एज ए की हैव द सेम कंटेंट लाइक जॉन एम्प्लॉय आईडी 101, जॉन एम्प्लॉय आईडी 101. So two duplicate key we are going to insert. Let's see how HashMap is allowing in case of user defined class object and why it is not allowing in case of predefined class object. I know guys, see. You can see, yeah, can you see here two duplicate object, name John, employee ID 101. अब आप देखो ये हो गया, कंपनी तो TCS हो गई इसकी, ठीक है। अब आप देखोगे इसको नेम जॉन एम्प्लॉय आईडी 101 और ये कंपनी नेम क्या हो गया उसका, इन्फोसिस। तो सेम ऑब्जेक्ट दो कंपनी से कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है कैसे, ये तो फ्रॉड हो गया एक तरह का। गॉट इट। तो इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, तो ये चीज रुकेगी आपको यहाँ पर मेंटेन, यू हैव टू मेंटेन द यूनिकनेस। यहाँ की मस्ट बी यूनिक। तो वैसे तो यूनिक होती है, लेकिन हमारे क्लास के जब ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर रहे हो जो की, तो यहाँ पर हैश मैप नॉट मेंटेनिंग द यूनिकनेस फॉर द की, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट की अलाउ हो रही है। क्यों हो रही है आपको मालूम है? क्योंकि जब भी आप की को ऐड करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू insert any element in the hash map or hash table or concurrent hash map, so internally hash code method will be applied. मैंने हैश कोलिजन का ऑलरेडी एक वीडियो डाला है प्रीवियस, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हैश कोड मेथड विल बी अप्लाइड ऑन योर ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट पर, जो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करके देगा। वो न्यूमेरिक वैल्यू आपको हैशिंग फंक्शन में देना पड़ता है। हैशिंग फंक्शन वो आपको देता है इंडेक्स नंबर ऑफ द बकेट। वंस द यू गेट द इंडेक्स नंबर ऑफ योर बकेट गेट आइडेंटिफाइड, ठीक है, देन फिर इक्वल्स मेथड कॉल होता है टू चेक द ऑब्जेक्ट कंटेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड बोथ यू हैव टू ओवरराइड। जब आप दोनों को ओवरराइड कर देते हो तब आपको एग्जैक्ट आप देखोगे कि अगर एक ही इंडेक्स नंबर मिलता है, इफ बोथ की हैव द सेम कंटेंट एंड दे गॉट द सेम इंडेक्स नंबर, तो वहां पर क्या होता है, हैश कोलिजन होता है। तो उसको हम अलग मेंटेन करते हैं, सेपरेट चेनिंग कंसेप्ट है उसके थ्रू। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हो, सेपरेट चेनिंग हैश कोलिजन हाउ वी मैनेज। तो गाइस यहाँ पर हमने कोई लॉजिक नहीं दिया है अपनी क्लास के, जो ऑब्जेक्ट मेरी ये क्लास है इसके अंदर कोई मैंने ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है जिससे हैश कोड मेथड अप्लाई हो। हैश कोड मेथड तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो कौन सा हैश कोड मेथड अप्लाई हो रहा है? आपने तो अपनी क्लास में हैश कोड मेथड कोई दिया नहीं है। देखो आप देखोगे एम्प्लॉय क्लास नॉट हैविंग एनी हैश कोड मेथड, कैन यू सी? तो वो ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड इनहेरिट होके आ रहा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, बिकॉज you are not extending your class, not extending from any class, then by default is extending from object class. So object class के अंदर ये सारे मेथड है, हैश कोड, इक्वल्स मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, नोटिफाई, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अलग अलग पर्पज हैं। तो यहाँ हैश कोड मेथड आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड वो बाय डिफॉल्ट आपके ऑब्जेक्ट के एड्रेस पर काम करता है। तो आपके ऑब्जेक्ट के एड्रेस का हैश कोड रिटर्न कर रहा होगा वो।
ना कि आपके ऑब्जेक्ट के कंटेंट का हैश कोड रिटर्न करेगा। इफ यू आर नॉट ओवरराइडिंग हैश कोड मेथड, सेम थिंग फॉर इक्वल्स मेथड। अगर आप इक्वल्स मेथड नहीं लिखोगे तो हाउ दे चेक, how they will be checking, how the hash map will be checking your object content, whether they are equal, whether they are same। ठीक है, उसके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है ना, आपने दी नहीं है आपकी क्लास के, आपने कुछ अपनी क्लास में ऐसा कुछ आपने लिखा ही नहीं, और नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट जो मेथड्स आ रहे हैं, और डिफॉल्ट मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ काम करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के कंटेंट के साथ काम करते हैं। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। So the default method of the object class, they always work with the reference value. Reference means object address value, not with the object content, remember। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, हम यहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं, हम यहाँ ये मिस कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर हैश कोड मेथड डिफाइन करना है और साथ में इक्वल्स मेथड डिफाइन करना है। ध्यान रखना, टू मेंटेन द यूनिक, क्योंकि इस ये इंटरनली हैश कोड मेथड कॉल होगा, फिर जब रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यू हैश कोड मेथड, वो हैशिंग फंक्शन को जाएगी न्यूमेरिक वैल्यू, हैशिंग फंक्शन इंडेक्स नंबर देगा ऑफ योर बकेट, बकेट गेट आइडेंटिफाई, देन इक्वल्स मेथड कॉल होता है, फिर वो ऑब्जेक्ट कंटेंट को चेक करता है। अगर सेम ऑब्जेक्ट कंटेंट मिल जाते हैं एक ही बकेट में तो वो सेपरेट चेनिंग होती है फिर वहां पे। ठीक है, गॉट इट। तो नाउ वी हैव टू ओवरराइट द हैश कोड मेथड, सो लेट्स सी generate, is there any option? Yeah, this is the option, so can you see here? So अब ये आप देखोगे, ये देखो आप, ये इन्होंने, ये हमने लाइक दिस इज जनरेटेड बाय इनसे जीआरई। ठीक है, ये आईडी ने जनरेट करके दे दिया, आप देख सकते हो। हम चाहें तो अपना भी हम आपको बना सकते हैं आपको, जैसे ये मैंने अपनी बॉडी में ये ये मान के चलो, ये हमारा आईडी जनरेटेड मेथड है। ठीक है, तो ये हैश कोड मेथड, ये भी आईडी जनरेटेड मेथड है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लॉजिक बनाऊँ यहाँ पर जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट कंटेंट को चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कंटेंट को चेक कर रहे हैं। तो कौन से ऑब्जेक्ट कंटेंट को चेक कर रहे हैं, ये जो आ रहा है, तो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट चेक करना चाहता है, मैं यहाँ पर करना पड़ेगा एम्प्लॉय, ये किया। अब जिसको चेक करना है जो डाला है वो है, और किसके साथ चेक करना है, जो एग्जिस्टिंग है पहले से ही है, तो रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, so this dot employee id, and ये जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये हो गया। एंड मुझे क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट को चेक करना, दोनों ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट है, एम और एम्प्लॉय आईडी, एंड दिस डॉट नेम। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट नेम डॉट इक्वल्स, तो ये स्ट्रिंग क्लास का नेम है, ध्यान रख दो। टाइप क्या है इसका नेम का, स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास के पास ऑलरेडी इक्वल्स मेथड, तो उसके इक्वल्स मेथड को मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर डालूंगा एम्प्लॉय डॉट, ठीक है। ये देखो अपन ने दे दिया, ये मेरा लॉजिक है, ये मैंने अपने लॉजिक बनाया है। रिटर्न कर रहा है, अगर ये दोनों इक्वल्स होंगे चेक करेगा तभी ट्रू करेगा, अदरवाइज एक भी कोई इक्वल्स नहीं है, एक भी वैल्यू मिसमैच हो रही है तो वो फॉल्स करेगा। ऐसे ही हैश कोड में रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू
नेम डॉट हैश कोड ये कर देगा, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी प्लस दिस डॉट नेम डॉट हैश कोड, तो ये रिटर्न करके भेज देगा। देखो तो ये देखेगा। तो अभी आप देखो गाइज, मैंने यहाँ पर अपना दे दिया है हैश कोड मेथड, जो इंटरनली अप्लाई करते हैं जब भी आप हैश मैप में या हैश टेबल में या यू नो कॉन्करेंट हैश मैप में एलिमेंट आप सेव करोगे तो इंटरनली हैश कोड मेथड वो अप्लाई करेगा और इक्वल्स मेथड को भी अप्लाई करेगा। तो मैंने अपना लॉजिक दे दिया अपनी क्लास का, ठीक है। अब चूंकि कंपनी क्लास में चूंकि वैल्यू है, इट कैन बी duplicate, so I don't want to make here anything, ठीक है। so let's see, this time guys you can see it will maintain the uniqueness because I have given the logic। तो वो लॉजिक अगर वो अब मैंने ओवरराइड कर दिया हैश कोड मेथड, इक्वल्स मेथड और ट्विस्टिंग मेथड, तो मेरी क्लास का हैश कोड मेथड इक्वल्स मेथड ओवरराइड होगा, ना कि वो मेरे क्लास का हैश कोड मेथड इक्वल्स मेथड कॉल होगा, ना कि ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड इक्वल्स मेथड। अब आप देखोगे, अभी आप देखोगे जॉन जॉन दो बार नहीं होगा, आई थिंक एक बार ही होगा। देखोगे आप यहाँ पर देखो, नेम एलाइज आईडी, कंपनी नेम एसेंचर, नेम जॉन, एम्प्लॉय आईडी। अब आप देखोगे नहीं आया, देखो आप देखोगे ये नेम जॉन और एम्प्लॉय आईडी 101 एक ही बार आया है, कंपनी नेम टीसीएस, ठीक है। आप देखो, ठीक है। अभी आप डुप्लीकेसी देखोगे आपका यहाँ पर नहीं है, सो वी रिमूव दैट डुप्लीकेसी बाय इम्प्लीमेंटिंग हैश कोड मेथड और कॉल्स मेथड। कैन यू सी एम्प्लॉय आईडी, ये देखोगे आप यहाँ से बंदा है, देखो ये आप देखो, तो ये वाला ओवरराइड हो गया है। आप देखोगे टीसीएस, ये वाला आई थिंक इन्फोसिस वाला हुआ है कि टीसीएस वाला, लेट्स सी जॉन, जॉन एम्प्लॉय टीसीएस वाला हो गया, ठीक है। तो एक ही बार हुआ है, so there won't be multiple employee object entry। so guys, this is the very important concept, so thank you guys, thank you so much, and go through this concept, it is very important interview point of view, and we have already seen, you know, that when you try to your class object into map, hash map, in the same way you can utilize the concurrent hash map, okay। so what are the things we have to remember while, you know, saving the object into the hash map or hash table or concurrent hash map? What are the things you have to implement in your class? You have to implement equals method, hash code method, and toString method, remember, okay, got it? So yeah, I will, this is very important concept, like what is the difference between equals and you can say what is the, you know, relation between hash code and equals method. So this is the interview question guys, I will cover in next session, yeah। so thank you guys, thank you so much, bye।